Yes, then tell me till what topic we have covered yes, on Saturday. You started with control statements, right? Which of the different control statements we have completed? Tell me. If Hello. else elif. एलिफ कंप्लीट किया था हमने या बाकी Yes, था? ma'am. यस मैम कंप्लीट किया था. इफ नेस्टेड इफ तक हुआ था ना या इफ एलिफ भी हुआ था कंप्लीट? इफ यस एलिफ भी हुआ था मिस. If elif भी हो. ओके सो जो मैंने प्रोग्राम्स दिए थे प्रैक्टिस के लिए दैट यू हैव डन. यस टेल मी एवरीवन. Yes. Yes, ma'am. Based on elif. Yes, ma'am. Okay, fine. So we have started with controls statements. It's a statement which determines flow of your execution of your different set of instructions. Is nothing but your control statements. Yes, and we have two kind of control statements available in this unit. First is selection or conditional control statements that we have seen Saturday, and then we have iterative control statements that we have to see from today, right? So iterative statements are nothing but just statements that executes repeatedly, right? To till your condition gets satisfied. Okay. So inside the selection or conditional statements, you have different statements like if else, nested if elif. This is a new kind of concept in Python, right? Which is not there available in other languages, right? So ये हम लोगों ने चार देखे थे. Now we have to move forward to iterative statements, right? So iterative statements क्या होता है? Just you have to execute some statements repeatedly, right? It is called as your iteration. Fine. Iteration का concept क्या होता है? Iterative control statements. नाम ही उसका iterative control statements है. So what is the concept of iteration? Yes, repeated execution of set of instructions or set of statements is nothing but your iterations. Is it? Okay. So inside this iterative control structures or iterative control statements, iteration is the technique that allows to execute block of statements repeatedly. जब तक आपका कंडीशन जो आपने सेट फॉर्म किया है, कंडीशन जो है स्टेट किया है, वो सेटिस्फाई नहीं होता है, तब तक ये आपका लूप इटरेट होता रहेगा. फाइन. दिस इज द कंसेप्ट ऑफ योर इटरेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर्स और स्टेटमेंट्स. So what are the different types of iterative statements? I have listed here: while loop, for loop, and nested loops. Right? These three are nothing but your different types of iterative statements. We will move forward to see one by one. Right? We will just see first while loop. Anyone knows? Anyone having any idea about while loop? Yes, tell me. We have already seen if, else. What is the difference between now if and this while concept or loop concept? While loop keeps in loop until a specific condition is satisfied. ओके. जो प्रीवियस हम लोगों ने देखे स्टेटमेंट्स, उसमें कोई ऐसे इटरेशन का कंसेप्ट था क्या गाइस? टेल मी. ये जो सारे हम लोगों ने देखे थे ऑन सैटरडे आई गेस, ये सारे हम लोगों ने देखे थे, उसमें कोई इटरेशन का कंसेप्ट था क्या? जस्ट वी आर चेकिंग सम कंडीशन एंड इफ दैट कंडीशन गेट सेटिस्फाई वी आर जस्ट मूविंग आवर काउंटर टू सम ब्लॉक, और इफ दैट कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड और एल्स, or if that condition is false, we are just moving our program control to some other block. That is the simple concept of this conditional statements. Is it? Am I right? Is there any counterpart or is there any iteration part in this all four statements? No. Yes, we are just checking condition and if that condition gets satisfied we are just moving our program counter. ते खूपच ओरडतात यार त्या मावशा. ओके.
इज इट क्लियर गाइस? टेल मी, इटरेटिव कंट्रोल स्टेटमेंट्स में क्या डिफरेंस है? हम लोगों ने जो सारे स्टेटमेंट्स देखे उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? सिंपली यू विल गेट सम काउंटर टू इटरेट योर लूप टिल योर कंडीशन गेट सेटिस्फाइड। फाइन, आपकी कंडीशन जब तक सेटिस्फाई नहीं होती है तब तक आपको एक काउंटर मिलेगा जो इटरेट होता रहेगा, एंड आपका जो भी जब सेटिस्फाई हो जाएगा तो आपका वो लूप एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा। दैट इज द सिंपल कंसेप्ट ऑफ योर व्हाइल लूप। और फॉर लूप जो भी है इटरेटिव के अंदर जो भी है उनका ये कंसेप्ट होता है, ठीक है। सो सिंपल व्हाइल वी आर जस्ट लुकिंग फॉर व्हाइल स्टेटमेंट इज पॉपुलरली यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटेटिंग इटरेशंस। भाई इटरेशन के लिए ये जस्ट पॉपुलर, अभी सारे के सारे व्हाइल हो फॉर हो ये सबका अभी डिस्क्रिप्शन काइंड ऑफ स्टेटमेंट ये दो ही हो गए भाई, कि सिंपली ये स्टेटमेंट्स आपकी यूज करते हो रिपीटेटिव एग्जीक्यूशन के लिए। ओके तो थोड़ा सा सिंटैक्स काइंड ऑफ थिंग हम लोग देखते हैं। व्हाइल होता है, व्हाइल इज द कीवर्ड, जो 33 कीवर्ड्स है उसमें आप लोगों ने ऑलरेडी देखा है। W should be small, W should be small. While or something test condition you have to specify. After that condition you have to specify colon. Fine. After colon you have to write some statements inside this while loop, and then you have to specify some counter to increment or decrement. Fine. So ये काउंटर के वजह से ही आपका जो भी है कंडीशन सेटिस्फाई होने तक आपका ये लूप इटरेट होगा। फाइन, तो ये सिंपल एक फ्लो चार्ट यहाँ पे बनाया है। इफ आपका कंडीशन ट्रू है यस तो वो लूप के अंदर जाएगा, जो वाइल के लूप के अंदर जाएगा, आपके स्टेटमेंट्स प्रिंट करेगा। अपडेट द कंडीशन एक्सप्रेशन का मीनिंग क्या है? सिंपली आपको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करना। इंक्रीमेंट के बाद फिर से आपके वो लूप के फर्स्ट पोजीशन से फिर से स्टार्ट हो जाएगा। कब तक वो इंक्रीमेंट होता रहेगा? जब तक आपकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। जब आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, सेटिस्फाई होना बंद हो जाएगी, वो इमीडिएटली आपके ब्लॉक से बाहर आ जाएगा। फाइन, दिस इज द execution of your while loop. Is it clear guys? Tell me. Simple while loop. Yes, ma'am. Okay. Now just we will see some ये प्रैक्टिस प्रोग्राम से पहले हम लोग एक छोटा सा एग्जीक्यूट करके देखते हैं। IDLE में ही हम लोग एग्जीक्यूट करके देखते हैं पहले। तो मैंने बोला था ये सारे लूप्स के स्टेटमेंट के लिए मेक श्योर आप स्क्रिप्ट मोड में ही सारा काम करो, क्योंकि एक ब्लॉक को आप रन करने जा रहे हो। सिंगल स्टेटमेंट को जब रन करते हो तब यू कैन जस्ट easily or happily use this ideally shell, but when you are just executing block of code then you have to compulsorily use this script mode. Right? So simply I'm just giving you one example of while loop. Right? So I equals to 1. If suppose I'm assigning some value to I variable, right? I is just I have taken variable for just iterating that loop. अभी देखो I मैंने एक 1 को असाइन किया है। अभी while जो भी आपका ये सिंटैक्स है, राइट? सिंटैक्स में ही सिंपली मैं वैल्यूज पुट करने जा रही हूँ, राइट? तो अभी देखो while is my keyword, I is less than equals to 10. अभी ये मेरी कंडीशन हो गई, राइट? while is my keyword, I is less than equals to 10. Right? This is nothing but my condition. ये I कहाँ से स्टार्ट होगा? मैंने उसके लिए सम स्पेसिफाई किया है। I equals to 1 मतलब ही ये जो while का लूप है मेरा 1 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक चलेगा? less than equals to 10 मतलब ये लूप तब जब तक मेरा 10 तक नहीं पहुँचता। इक्वल्स टू लिखा है मतलब 10 भी इंक्लूड होगा। Is it correct? Is it understood by you guys? Tell me. Yes, ma'am. Hello. Yes, ma'am. Okay. Now I'm just printing value of I. Right? जो I की वैल्यू है each and every iteration में simply print करवा रही हूँ, right? And after that I'm just what is the next statement is your I plus 1, right? So simply this is nothing but your incrementation, right? अभी क्या होने वाला है? हैश करके मैं इंक्रीमेंट काउंटर करेक्ट। अभी क्या होने वाला है? मेरा ये इटरेशन I इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट हो रहा है। I पहले 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 को चेक होगा 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 10 है क्या? यस इट इज, राइट? सो इट विल डायरेक्टली प्रिंट 1 वैल्यू ऑफ I की वैल्यू क्या है? 1। अभी I नेक्स्ट इटरेशन में क्या हो रहा है? यस 1 I इज इक्वल्स टू I प्लस 1। अभी ये स्टेटमेंट के लिए आप एक शॉर्ट हैंड वे में क्या लिख सकते हो? बोलो, हम लोगों ने असाइनमेंट के केस में देखा भी था। शॉर्ट हैंड वे में कुछ लिख सकते हो क्या? इधर ऐसे लिखो, नहीं तो डायरेक्टली अपने असाइनमेंट ऑपरेटर में हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है I
प्लस plus. सॉरी प्लस नहीं आई प्लस इक्वल्स टू 1 लिखा तो भी चलेगा, राइट? यस, आई प्लस इक्वल्स टू 1 लिखा तो भी चलेगा। दिस इज नथिंग बट जस्ट योर इंक्रीमेंट काउंटर। इसके वजह से क्या होगा, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, 2 हो जाएगी, फाइन। 2 होने के बाद फिर से वो चेक होगा कंडीशन, इज 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, यस इट इज, देन अगेन इट विल प्रिंट वैल्यू ऑफ आई। 2 प्रिंट हो जाएगा, अगेन ये इंक्रीमेंट होकर 3 हो जाएगी, फाइन। 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, यस इट इज, फाइन। सो ऐसे करते करते आई की वैल्यू कब तक प्रिंट होने वाली है, टेल मी। So this is my 10 तक। Condition is Yes. satisfied. 10 तक मैम। 10 तक। जब ये आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 11 होगी तो ये कंडीशन चेक होगी, 11 इज लेस देन और इक्वल टू 10, नो इट्स नॉट। तो ये जो भी है वाइल लूप से वो बाहर आ जाएगा, राइट? और आपका एग्जीक्यूशन जो है स्टॉप हो जाएगा, राइट? इज इट क्लियर? तो अभी हम लोग सेव करके, यस सेव करके हम लोग देखते हैं। हाँ इंक्रीमेंट बोलो। में आई प्लस नहीं होता क्या? नहीं, आई प्लस प्लस, ये इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट हम लोगों ने ऑपरेटर्स में देखे क्या, कोई ऑपरेटर्स बोलो। ऑपरेटर्स का पूरा कंसेप्ट हम लोगों ने देखा था। इंक्रीमेंट मतलब डबल प्लस प्लस या डबल माइनस माइनस, ऐसे कुछ हम लोगों ने देखा था क्या, टेल मी। नहीं था उसमें। होता है क्या, जिसे पाइथन पता है जस्ट टेल मी, होता है क्या ऐसे कंसेप्ट? सिंपल। अरे पाइथन बहुत सारे लोगों को पता है ना। यस नो। देखो अभी कितने नंबर्स मेरे प्रिंट हो गए हैं, यस 1 2 3 4 5 6 टिल 10, यस 11 मेरा प्रिंट हुआ क्या, नहीं, बिकॉज 11 जब ये इंक्रीमेंट होगा एंड 11 पे आ जाएगा, ये जो भी है आपका कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं होती है और वो डायरेक्टली आपका स्टॉप हो जाएगा, राइट? अभी सिंपली अगर आप बोल रहे हो यहाँ पे आई प्लस प्लस लिख के दिखा देती हूँ, राइट? आई प्लस प्लस कर देती हूँ। देखो इनवैलिड सिंटैक्स बोल रहा है, ये जो भी प्लस प्लस वाला जो भी कंसेप्ट होता है यहाँ पे ऐसे अवेलेबल नहीं है आपको, कंपल्सरीली आई इक्वल्स टू आई प्लस 1 लिखो इधर, अदरवाइज यू कैन डायरेक्टली राइट लाइक दिस। यस, हम लोगों ने ये शॉर्ट हैंड वे से कैसे असाइनमेंट प्लस एडिशन कैसे करना है, असाइनमेंट प्लस मल्टीप्लीकेशन, ये सारे कंसेप्ट देखे थे असाइनमेंट में। यस और नो गाइस, टेल मी, इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, तो सिंपल आपका हो गया वाइल लूप का एग्जीक्यूशन, राइट? हम लोगों ने कुछ नहीं किया, सिंपली एक आई को कहाँ से स्टार्ट करना है लूप, इसलिए हम लोगों ने आई को इनिशियलाइज किया है बाई 1। यस, यहाँ पे अगर मैं ये हटा देती हूँ तो मेरे कितने नंबर्स प्रिंट होंगे, कैन एनीवन टेल मी? इफ ये इक्वल्स टू हटा देती हूँ मैं, 9 till 9। 9। यस टिल 9, क्योंकि क्या है इक्वल्स टू मैंने हटा दिया, मतलब ये 10 जो है इंक्लूड नहीं होगा, और जो भी है 10 अगर आता है, ये इंक्रीमेंट करते करते आई की वैल्यू जब 10 पे आ जाएगी तो ये 10 इज लेस देन इक्वल्स टू लेस देन 10 है क्या, नो, तो वो डायरेक्टली वो वाइल के बाहर जाएगा और 10 आपका प्रिंट नहीं होगा, फाइन, 10 आपका प्रिंट नहीं होगा, फाइन। ये देखो नीचे मैंने प्रिंट करवा दिया, इसलिए मैंने यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू का यूज किया था, मतलब वो 10 भी इंक्लूड हो जाए मेरे प्रिंटिंग में, इस वजह से। Is it clear, guys? Anyone having any doubt? Tell me. किसी को कुछ डाउट है, फिर से एक्सप्लेन करना है कैसे होता है इसका एग्जीक्यूशन? Yes. ओके, चलो तो अभी अगर आपको वाइल का जो भी है कंसेप्ट समझ में आया है तो अभी हम लोग प्रैक्टिस प्रोग्राम्स के ऊपर जाते हैं, राइट? थोड़े से आप घर पे करोगे, थोड़े से मैं यहाँ पे करके दिखाऊंगी, ठीक है? तो जो कंसेप्ट है वाइल का अभी आपको समझ में आ गया, देन वी विल जस्ट स्टार्ट सॉल्विंग दिस प्रैक्टिस प्रोग्राम्स। फर्स्ट आई हैव गिवन यू लाइक फाइंड सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स एंड आल्सो फाइंड एवरेज ऑफ इट। यस, ये क्या करोगे इसके लिए? Anyone can tell me? मुझे अभी जो हम लोगों ने 1 to 10 नंबर्स प्रिंट करवाए थे वही 1 to n नंबर्स का मतलब ही, जो अगर यूजर ने n की वैल्यू 10 दे दी, फाइन, ये ईच एंड एवरी प्रोग्राम में ना n की वैल्यू यूजर से लेनी है, n की वैल्यू यूजर से लेनी है, ईच एंड एवरी चारों के चारों प्रोग्राम में n की वैल्यू जो है आपको यूजर से लेनी है, फाइन। ओके, तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर, अगर n की वैल्यू में यहाँ पे 10 देती हूँ, फाइन,
अगर इफ मैं यूजर हूँ एंड यूजर ने n की वैल्यू 10 दी है, तो मुझे 1 to 10 की सिंपली सम चाहिए। यस, सारे के सारे 1 to 10 नंबर्स का सम चाहिए, एज वेल एज मुझे सारे नंबर्स का एवरेज भी चाहिए। यस, क्लियर क्या करना है? Yes, ma'am. तो क्या करोगे बोलो? ऐसे लगता था। So what I will try to do, ये 2016 और 2017 का जो फील्ड है, that is say cells of 2016 and 2017. So I want a consolidated cell of both the years. बोलो n की वैल्यू यूजर से लेना है, तो जस्ट हैशटैग कर देती हूँ और ये जो भी है स्टेटमेंट एज इट इज मैं यहाँ पे कॉपी करवा देती हूँ। Do the addition of it, correct? So I will be doing just addition of it. ये वाला स्टेटमेंट में वहाँ पे एज हेडिंग करके मैं कमेंट करके यहाँ पे डाल देती हूँ। ठीक है, आपको सिंपली है n नेचुरल नंबर्स का सम भी प्रिंट करना है एज वेल एज उसका एवरेज भी निकालना है। ओके, सो n की वैल्यू मैंने जैसे बोला यूजर से लेना है, राइट? So just take that first n equals to int. You have to do some type conversion. Yes, तो इसके लिए मैंने int कर दिया है and then input enter the value of n, right? So I just given just input statement to the user that enter some value for n, right? After that what you have to find out सम एंड एवरेज, राइट? सो सम के लिए हमें एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, एवरेज के लिए एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, राइट? सो मैंने पहले ही आपको बोला है कि सम एंड एवरेज जो भी है, जिसके अंदर जो वेरिएबल के अंदर आप फाइनल आउटपुट कैलकुलेशंस का जो भी है कैलकुलेशन का रिजल्ट प्रिंट करवाते हो या स्टोर करते हो, उसे कभी भी ना ऐसे जीरो से इनिशियलाइज करके रखते जाओ, ताकि क्या है ना गार्बेज वगैरह वैल्यू आने का कोई चांस नहीं होता है इस वजह से, राइट? तो सिंपली मैं ऐसे दो एवरेज एंड सम दो वेरिएबल मैंने लेके रखे हैं, उसे जस्ट सिंपली ऐसे जीरो से असाइन करके रखा है, राइट? सो नेक्स्ट हमें एक इटरेशन के लिए, राइट, एक मुझे कोई तो एक वेरिएबल लगेगा, तो सेम वे से जैसे हम लोगों ने 1 to 10 प्रिंट करते वक्त लिया था, वैसे मैं एक 1 लेके रखती हूँ, राइट? अभी मेरा वाइल लूप स्टार्ट करना पड़ेगा मुझे, ये सुनो। सो वाइल अभी कहाँ से कहाँ तक जाना चाहिए, तो ये जो भी यूजर ने दिया हुआ वैल्यू है वहां तक मुझे वो लूप इटरेट करना होगा। ये सुनो गाइस, टेल मी। तो ये वाइल लूप कहाँ तक Yes, जाना ma'am. चाहिए? वाइल लूप का कंडीशन क्या फॉर्म करना चाहिए मुझे, टेल मी। I is less or equal to n. Yes, I is less than equals to n. n मतलब ही क्या है, यहाँ पे जो यूजर n की वैल्यू डालेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। इफ सपोज यूजर ने यहाँ पे इफ यूजर ने यहाँ पे 10 डाला तो ये 10 यहाँ पे आ जाएगा। यूजर ने अगर यहाँ पे 20 डाला तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। इज इट क्लियर विथ यू ऑल गाइस, टेल मी। अगर यूजर ने 5 डाला तो ये जो भी है लूप 1 से लेके 5 तक ही चलेगा, राइट? जो यूजर n की वैल्यू डालेगा उतने इटरेशन ये लूप के होंगे, राइट? दिस इज नथिंग बट ये कंडीशन आप लोगों ने स्पेसिफाई की है, राइट? अभी इसके बाद सम करना है मुझे, 1 by 1 मुझे सम करना है। तो सम के लिए ऑलरेडी वी हैव टेकन सम वेरिएबल, सो सम इक्वल्स टू अभी मुझे क्या करना है, देखो सम करना है 1 by 1 सारे वैल्यूज का, और वो मुझे फिर से सम ही वेरिएबल में स्टोर करते रहना है। तो उसके लिए क्या करोगे आप, सम प्लस आई। तो इसका मीनिंग ही क्या है देखो अभी, राइट? और सिंपली अभी मुझे क्या करना है, 1 से मेरा लूप स्टार्ट हो गया, मैं चेक करूंगी इफ सपोज यूजर ने 10 डाला है, इफ सपोज यूजर ने, मैं थोड़ा कम लेती हूँ, 5 डाला है सपोज, राइट? सो 1 is लेस देन और इक्वल टू 5, यस, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, राइट? तो अभी इसमें सम में क्या है, सम में तो जीरो ही है, जीरो प्लस आई की वैल्यू क्या है 1। ये सुनो 1 जो भी है ये मेरे फिर से सम में ही स्टोर हो जाएगा, राइट? अभी नेक्स्ट आपको सिंपली आई प्लस प्लस करना है, वो एक स्टेटमेंट में लिख लेती हूँ, आई इक्वल्स टू आई प्लस 1, राइट? सो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, आई अभी क्या हो गया, टेल मी। आई की वैल्यू क्या हो गई सेकेंड इटरेशन में, 2. 2, यस। 2.
टू फिर से चेक होगा, इज 2 इज लेस देन इक्वल्स टू n, n की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, यस पूरे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन तक n की वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी, ओनली i की वैल्यू ईच एंड एवरी इटरेशन में इंक्रीमेंट के बाद वो एक एक से इंक्रीमेंट होती जाएगी, राइट। सो 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 5 है क्या, यस है, तो फिर से वो अंदर आ जाएगा। अभी सम में क्या है, ऑलरेडी सम में हम लोगों ने लास्ट इटरेशन का 1 स्टोर करके रखा है, तो 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा 3, और वो 3 फिर से ये सम वेरिएबल में ही स्टोर हो जाएगा, राइट। आई की वैल्यू अभी 2 थी, फिर से इंक्रीमेंट हो जाएगी 3 हो जाएगी, राइट। सो 3 फिर से चेक होगा, इज 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 5 है क्या, यस इट इज, तो फिर से ये अंदर आ जाएगा। सम में पहले से क्या है, लास्ट इटरेशन का सम हम लोगों ने ऑलरेडी सम में ही स्टोर किया है, तो सम में क्या है ऑलरेडी 3 है, ये सुनो 3 अवेलेबल है, 3 प्लस आई की वैल्यू क्या है 3 है, तो 3 प्लस 3 कितना हो जाता है 6, और ये 6 फिर से मेरा सम में ही स्टोर हो जाएगा। इज इट क्लियर गाइस, समझ में आ रहा है, बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. फिर से आई Yes, की ma'am. वैल्यू 4 हो जाएगी, 4 होके फिर से वो चेक होगा, फिर से सम में जो 6 है 6 प्लस 4 हो जाएगा 10 हो जाएगा, फिर से ये सम में स्टोर हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट योर सम। तो जो भी है ये कितने तक चलेगा, जब तक मेरा ये जो भी है n की वैल्यू 5 तक नहीं पहुंचती, जब भी मेरा i 6 हो जाएगा तो ये लूप एग्जीक्यूट होना ही बंद हो जाएगा, यस। एग्जीक्यूट होने के बाद सिंपली वो नेक्स्ट जो भी आपने लिखा है उस पर आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद मुझे सिंपली क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज निकालना है। सो एवरेज, एवरेज के लिए ऑलरेडी हम लोगों ने एक वेरिएबल लिया है, एवरेज कैसे निकालोगे बोलो अभी। एवरेज मतलब भी सारी एडिशन प्लस डिवाइड बाई वो कितने नंबर ऑफ काउंट जो होता है उसका, Sum divided by n. यस सम डिवाइड बाई n शुड बी योर एवरेज, राइट। सम डिवाइड बाई n आपका एवरेज आ जाएगा, और फाइनली आपको सिंपली क्या करना है, प्रिंट करना है। इज समेशन इज कर दिया है मैंने, हुआ है सम वेरिएबल में, राइट। और सेम वे से आपको क्या प्रिंट करवाना है, सॉरी एवरेज भी प्रिंट करवाना है, तो एवरेज इज करके एक स्टेटमेंट लिख देती हूँ, और एवरेज आपका ये एवीजी नाम के वेरिएबल में स्टोर हो गया है, सो यू हैव टू जस्ट सिंपली प्रिंट दैट एवरेज एज वेल, ठीक है। तो अभी सिंपली आपका प्रोग्राम सेव करके रन करके देखो। So now, what actually they did, so original data frame, so you change the customer number to original data frame and make sure that it actually the is type function returns for software, correct? ठीक है, अभी रन करके देखो, तो n एंटर द वैल्यू ऑफ n बोल रहा है, तो मैं 5 डाल देती हूँ, ठीक है। मुझे 1 to 5 नंबर्स का सम भी चाहिए, एंड 1 to 5 नंबर्स का बाद में एवरेज भी चाहिए, राइट। तो आ रहा है क्या, समेशन 15 आता है, 15 डिवाइड बाई 5 करते हैं, तो 5 3 जा 15। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है, Yes, किसी ma'am. को नहीं आ रहा है फिर से एक्सप्लेन करना है, टेल मी। And then this will change the data, this type into the original data, correct? So when we execute this, now here we can see that customer number. एवरीवन बोलो, जो भी 60 लोग अवेलेबल है डी डिवीजन में, सबको क्लियर है, 60 प्रेजेंट है डी डिवीजन में, 60 के 60 सारे लोगों को क्लियर है भाई लोग, ओके। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Excuse me, ma'am. हाँ बोलो। सम के लिए और एवरेज के लिए 0 ही असाइन करना पड़ेगा, या दूसरा ही वेरिएबल ले सकते हैं? नहीं नहीं, ये 0 असाइन करने का पर्पस क्या है, देखो जो भी हम लोग वेरिएबल लेते हैं जिसमें हम लोग ऐसे कैलकुलेशन करके फाइनली स्टोर करने वाले, ऐसे जो वेरिएबल आप लेते हो ना, अभी आई को वगैरह मैंने 0 से असाइन किया है क्या, नहीं। देखो ये जो भी कैलकुलेशन करके मैं फाइनली रिजल्ट जिसमें स्टोर करके रखने वाली हूँ ना, ये ऐसे वेरिएबल्स के लिए आपको ये गुड प्रैक्टिस होती है, गुड प्रैक्टिस होती है कि आप ऐसे ये वेरिएबल्स को 0 से असाइन करो। क्यों, क्योंकि क्या होता है, जब भी ये ऐसे वेरिएबल्स क्रिएट होते हैं मेमोरी में, जब भी वो उसे मेमोरी एलोकेट हो जाती है, जैसे आपको पता है वेरिएबल जब भी आप लिखते हो ऑटोमेटिकली कंटेनर फॉर्म हो जाता है मेमोरी में, तो ये जो कंसेप्ट होता है ना, ये वेरिएबल्स के लिए ऑटोमेटिकली भी कभी कभी ना उसके अंदर जब भी क्रिएट होते हैं मेमोरी में, गार्बेज वैल्यू आने के चांसेस होते हैं। गार्बेज वैल्यू मतलब ही क्या होती है कि कोई भी एक रैंडम वैल्यू उसमें आके पढ़ सकता
सकती है जब वो उसके मेमोरी एलोकेशन होती है उसे, राइट। तो वैसा ना हो और उसकी वजह से आपका ये कैलकुलेशन गलत ना हो, उसके लिए आपको ये 0 से असाइन करने की एक हैबिट लगा दो, ऐसा मैंने बोला था। एंड इट्स गुड प्रैक्टिस, तो जो भी कैलकुलेशन करके रखने वाले हो वो वेरिएबल्स के लिए आप 0 से ही असाइन करो, ताकि आपके ये जो कैलकुलेशंस होते हैं फाइनली कभी गलत नहीं होंगे, राइट। ये रीजन है। अगर 1 वगैरह डालते हो तो आपका तो कैलकुलेशन ही गलत हो जाएगा ना, यस और नो। 0 छोड़ के कोई भी दूसरी वैल्यू डालते हो तो ये आपका फाइनल कैलकुलेशन ही गलत हो जाएगा, यस और नो। 0 डालने का पर्पज ओनली यही है कि उसमें कोई भी गार्बेज वैल्यू या कोई भी रैंडम वैल्यू जब उसका मेमोरी एलोकेशन होता है तब आके ना बैठे, इसलिए वो 0 से असाइन करना का पद्धत होती है, यस। इज इट क्लियर? ओके फाइन, ठीक है। ओके तो अभी बोलो नेक्स्ट का क्या करना है। राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले स्क्वायर टिल n नंबर्स। ओके तो ये सिंपली करना क्या है, देखो टिल n नंबर, अगर n की वैल्यू यहाँ पे भी मैंने बोला है चारों के चारों प्रोग्राम के लिए n की वैल्यू आपको यूजर से लेनी है। ये वाला प्रोग्राम आप घर पे करो, मैं बाकी दोनों के लिए हेल्प करती हूँ। इसके लिए करना क्या है, इफ सपोज मैंने n की वैल्यू 5 डाली है, राइट। तो आपको चाहिए क्या, रिजल्ट में क्या चाहिए आपको, जस्ट सारे के सारे 1 to 5 नंबर्स का पूरा स्क्वायर करके आना चाहिए मुझे, यस। 1 to 5 नंबर के सारे स्क्वायर आना चाहिए। तो 2 का स्क्वायर क्या है, 1 का स्क्वायर क्या है, 2 का क्या है, 3 का क्या है, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ऐसे मुझे प्रिंट होना चाहिए 1 by 1। इज इट क्लियर? Yes, क्या ma'am. करोगे उसके लिए, क्या करोगे, टेल मी। It's not looking so good for A type as a tool. So we should give it one more try to an active form. n की वैल्यू तो यूजर से लोगे, ठीक है। यूजर से n की वैल्यू सेम ये प्रोग्राम जैसे n की वैल्यू यूजर से लेना पड़ेगा। एकदम सिंपल प्रोग्राम है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। अभी आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मैं थोड़ा सा लॉजिक बता देती हूँ, ठीक है। तो ये तो कुछ भी नहीं आएगा, सिंपली हमें स्क्वायर प्रिंट करना है और डायरेक्टली प्रिंट करना है, ठीक। सो सिंपली ये तो कुछ भी नहीं आएगा, आपका जो भी है आई सेम वे से 1 से स्टार्ट करो। वाइल भी लूप आपका सेम लेस देन नहीं, हाँ लेस देन n आ जाएगा, जो भी आपने n की वैल्यू लिया है ये वाइल भी लूप सेम आ जाने वाला है, राइट। अभी प्रिंट स्टेटमेंट में सिंपली आपको स्क्वायर निकालना है, यस। तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर निकालने के लिए क्या करते हो आप, Square is equals to n to the power 2. n to the power of 2, और सिंपली दैट नंबर इनटू नंबर भी कर सकते हैं, एकदम सिंपल वे से अगर करना है तो। यस और नो गाइस? Yes, ma'am. नंबर इनटू नंबर करके एकदम इजी से हो जाएगा, यस और नो? हम लोग अभी So this AS type will only work if the data is clean and can be simply से read as a number. You want to convert a numeric value to string object. Simple. तो ही इसमें ये AS type work होता है. ठीक है, हम लोग ना अलग ही करते हैं, छोड़ो। Can be simply interpreted as a number and the next part is. बोलो क्या करना पड़ेगा, जल्दी से बोलो। And next part is the data is clean. You can be स्क्वायर वगैरह इतना भी कुछ लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली नंबर इनटू नंबर करके भी आप कर सकते हो। मैं सिंपली लॉजिक बता रही हूँ, आपको खुद से करना है, थोड़े से प्रोग्राम खुद से करो। And then we need to say something else for it. सेम वे से आपको एक जस्ट n की वैल्यू यूजर से लेनी पड़ेगी इंट करके, राइट। इंट इनपुट let's see like how we do this custom conversion by defining the वैल्यू ऑफ n, ठीक है। n की वैल्यू हम लोगों ने यूजर से ले ली है। सेम वे से आई आपका 1 से इनिशियलाइज कर दो। वाइल लूप भी क्या होने वाला है आपका, वाइल i इज लेस देन इक्वल्स टू n, ठीक है। ये मेरा i हो गया, क्योंकि मुझे ये लूप कहाँ तक चलाना है, जो यूजर वैल्यू दे देगा यहाँ पे। अगर यूजर ने वैल्यू मेरी 5 दी है तो मेरा 5 तक ये लूप इटरेट होना चाहिए, राइट। दिस इज माय कंडीशन। तो अभी मैंने कंडीशन दे दिया, अभी सिंपली मुझे क्या करना है, स्क्वायर करना है। मैंने कोई भी एक दूसरा वेरिएबल नहीं लिया उसके लिए, सिंपली प्रिंट स्टेटमेंट में डायरेक्टली i इंटू आई करके वो प्रिंट करवा दो ना, चलेगा क्या? Yes, ma'am. अभी अगर मैं ठीक है करके दिखा देती हूँ बेटा, प्रिंट ऑफ नंबर, सिंपली मैं ऐसे एक जस्ट मैसेज दे रही हूँ,
और ये मैंने वाइल के बाहर क्यों लिखा है, क्योंकि वो मल्टीपल टाइम्स प्रिंट ना हो, उस वजह से मैंने बाहर ही लिखा है। अभी मैं सिंपली क्या करती हूँ, वो स्क्वायर इक्वल्स टू रेज टू पावर वगैरह, वो पावर एक्सपोनेंशियल वाला भी आप यूज कर सकते हैं, बट इससे भी इजी एक मैं मेथड बता रही हूँ आपको, मेथड आपको इजी लगता है वो वैसे करो भाई। तो ये सिंपली करना है आपको, एंड उसके लिए आई करवा देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या प्रिंट होता है देखते हैं हम, आई इक्वल्स टू आई प्लस वन, इससे क्या होने वाला है बोलो। Yes. As I already said, I recommend all of you to allow pandas to convert the specific size of boat or unit. To take care of the size. PY. So there is no need for us to. Any guesses? Yeah, lambda function कैसे होता है? So this is how I do a lambda function. इंटरनेट गेलं होतं का? Converts this Hello, am I power, audible? into the one. Yes, ma'am. Yes. Yes, 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 ma'am. Lambda function. So using lambda, we can still पता नहीं इंटरनेट चला गया था आई गेस। perfectly a valid. ठीक है, तो ये मेरा प्रोग्राम हो गया। देखो कहाँ तक देखा था आप लोगों ने? If we are just बोलो। learning Python or pandas, and if someone is new in Python, and if we look ये at सिंपली this, हम लोगों ने क्या किया है, n की वैल्यू यूजर से लिया है, यस, देन वी आर जस्ट स्टार्टिंग अ लूप फ्रॉम वन से स्टार्ट होगा, वन से कहाँ तक लूप चलेगा, जब तक आपका ये फाइव जो दिया गया नंबर है वहाँ तक आपका आई नहीं पहुँचता है, राइट। तो आई पहले वन है तो वन चेक होगा, इज वन इज लेस देन इक्वल्स टू फाइव, यस इट इज। तो प्रिंट क्या करवाना है आपको, यस मैंने पहले एज इट इज वैल्यू को भी प्रिंट किया है, एंड आफ्टर दैट वो वैल्यू के बाद सिंपली उसका स्क्वायर किया है। स्क्वायर इज ऑल्सो द नंबर इंटू नंबर इज ऑल्सो योर स्क्वायर, ठीक है। सो ये वन पहले होगा, वन इंटू वन, यस वन इंटू वन जो भी है आपका वन प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, टू हो जाएगी, राइट। सो सिंपली आपका फिर से ऊपर चला जाएगा, आई टू इज लेस देन इक्वल्स टू फाइव है क्या, यस इट इज, राइट। सो टू इज लेस देन इक्वल्स टू फाइव, देन फिर से वो अंदर आ जाएगा, टू एज इट इज प्रिंट करवा रही हूँ मैं, एंड बाद में जो है टू के बाद टू इंटू टू करके फोर आ रहा है, यस। सो दिस इज नथिंग बट माई सेकेंड इटरेशन। इज इट क्लियर गाइस, समझ में आ रहा है बोलो? Yes, ma'am. Yes. ठीक है, तो ऐसे Yes, आपका ma'am. लूप कहाँ तक इटरेट होने वाला है, टेल योर आई जस्ट बिकम्स फाइव, जो भी आपने n की वैल्यू डाली है तब तक आपका फाइव जाता है, तब तक ही आपका ये लूप इटरेट होगा। आई की वैल्यू जब 6 हो जाएगी ये लूप इटरेट होना बंद हो जाएगा, ठीक है। So अभी कैसे, अभी तक हमने क्या किया था, अभी तक हमने ठीक है। सो अभी थर्ड कंसेप्ट क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले इवन और बिटवीन रेंज।
ओके, अभी ये आप घर पे कर सकते हो। यस और नो, इवन ऑड बिटवीन रेंज, अगर मेरी n की वैल्यू ठीक है, मैं n की वैल्यू यूजर से लेती हूँ, वो n इक्वल्स टू 10, इंटू 10 में कौन से नंबर इवन है एंड कौन से नंबर ऑड है, ये सिंपली मुझे प्रिंट करवाना है। क्लियर है, हो जाएगा। Yes, ma'am. क्या करना पड़ेगा, कैन एनीवन एक्सप्लेन मी दिस लॉजिक ऑफ प्रोग्राम। अगर n की वैल्यू यूजर ने 10 डाली है तो 1 से लेकर 10 तक कौन कौन से इवन नंबर्स है मुझे प्रिंट करना है। 1 इज ऑड नंबर, 2 इज इवन नंबर, 3 इज ऑड नंबर, 4 इज इवन, 5 इज ऑड, 6 इज इवन, ऐसे मुझे प्रिंट करना है टिल 10। व्हाट शुड बी लॉजिक, टेल मी। व्हाइल की कंडीशन क्या लगाओगी। मैम इसमें if else भी ले सकते हैं ना कंडीशन? ले सकते नहीं, लेना ही पड़ेगा। इवन ऑड कैसे चेक करोगे नहीं तो। पहले व्हाइल आपको मैम एक, i is less than equal to 10 देंगे। हाँ i इज लेस देन इक्वल टू n, ये आपकी व्हाइल की कंडीशन हो गई, ये सब। और वो व्हाइल के अंदर आपको इफ एल्स लेना if पड़ेगा। I mod equal to 0, then print a number is even, else number is odd. i mod 2 इक्वल्स टू 0। यस, आई मॉड 2 इक्वल्स टू 0 है, तो आपको प्रिंट करना होगा आई इज इवन। आई की वैल्यू भी प्रिंट करो, मतलब ये 2 प्रिंट हो जाएगा, 3 प्रिंट हो जाएगा, आई प्रिंट करो, ठीक है, आई और डबल कोट्स में इज इवन ऑड ऐसे लिखो। एल्स में आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली प्रिंट करना पड़ेगा आई इज ऑड। और सिंपली इफ एल्स के बाद आपको आई इक्वल्स टू आई प्लस 1 इंक्रीमेंट वाला काउंटर आपको लिखना पड़ेगा, तभी आपका एक एक से इंक्रीमेंट होगा। अगर काउंटर नहीं लिखा तो इंक्रीमेंट ही नहीं होगा। इज इट क्लियर गाइस, टेल मी, कर पाओगे क्या। यस, क्योंकि सारे के सारे प्रोग्राम्स में यहीं पे सॉल्व करके दे सकते हो, बट आपको खुद से करना भी आना चाहिए ना गाइस। ये सॉल्व बोलो, क्योंकि खुद से जब करोगे ना तभी आप सीखोगे कोडिंग करना, तभी आप कर पाओगे खुद से। यस यस मैम। तो थर्ड में बोल रही हूँ आपको घर पे करने के लिए, ठीक है, तो एकदम इजी है। अगर नहीं आता है तो कल मुझे बोलो, मैं करके दिखा दूंगी, ठीक है। बहुत इजी है, सिंपली आपको वाइल लूप, सेम हम लोगों ने जो 2 प्रोग्राम में वाइल लगाया था वैसे ही वाइल लूप लगाना है, और वो वाइल के अंदर आपको एक इफ एल्स लगाना पड़ेगा टू चेक दैट आई इज इवन और ऑड। यस, आई, वो वाइल के अंदर एक इफ लगा दो, इफ आई इज मॉड 2 इक्वल्स टू 0। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो सिंपली प्रिंट करना है आई इज इवन, एल्स में सिंपली आपको प्रिंट करना है आई इज ऑड। यस, एल्स में फिर से कंडीशन चेक करने की भी जरूरत नहीं है, एंड फाइनली आपकी आई का काउंटर 1 से इंक्रीमेंट करवा दो, दैट्स इट। ठीक है, इजी है, ट्राई करो। अगर नहीं आता है तो प्लीज मुझे पूछो, कल मैं बता दूंगी, ठीक है। नो नीड टू हेजिटेट गाइज, अगर नहीं आता है यू कैन आस्क मी, आई जस्ट एक्सप्लेन यू व्हाट टू डू, फाइन। सो अभी जाते हैं, हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है। राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले फिबोनाची सीक्वेंस। यस, एनीवन नोज व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ फिबोनाची सीक्वेंस टिल लेंथ n। Yes, ma'am. अरे ते हे झाल्याशिवाय मला कमीच करता येते नाही, सारखी कंटिन्यू फोन करतायत स्टुडंट, काय समजत नाही। नाही नाही। यस, टेल मी व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ फिबोनाची सीक्वेंस। अगर कोई मतलब ऐसे 1 लिखना है और उसका सेकंड नंबर लिखना है, तो मतलब उसके पहले के नंबर ऐड करके नेक्स्ट वाला नंबर मिलता है। ओके, सो इफ सपोज देखो, अभी फिबोनाची सीक्वेंस मतलब क्या होता है, मैं 0 से स्टार्ट कर रही हूँ, 0, नेक्स्ट नंबर मेरा 1 है, तो मेरा थर्ड नंबर क्या बनने वाला है, ये फर्स्ट 2 नंबर्स की एडिशन इज नथिंग बट योर थर्ड नंबर, 0 + 1 इज नथिंग बट योर 1। अभी इसका नेक्स्ट नंबर कैसे जनरेट होने वाला है, पहले उसके पहले 2 नंबर्स की एडिशन, 1 + 1 क्या होता है, बोलो। 2 मेरी नेक्स्ट सीरीज का नंबर बन गया। अभी नेक्स्ट नंबर कैसे जनरेट होगा, 2 + 1, उसके आगे के 2 नंबर्स का एडिशन इज नथिंग बट योर जो भी है थर्ड वाला नंबर। अभी बोलो इसका आगे का नंबर क्या होगा,
यस, Three. अभी नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए? 5 5. नेक्स्ट 8. 8 13. 13 30। ये हमारा ऐसे सीक्वेंस 13. बनते जाता है, राइट? ये सीक्वेंस बनते जाता है। दिस सीक्वेंस इज नथिंग बट योर फिबोनाकी सीरीज और फिबोनाकी सीक्वेंस, राइट? फिबोनाकी सीक्वेंस बोला जाता है, राइट? तो अभी देखो, ये आपको लेंथ की वैल्यू मतलब ये क्या यूजर से लेना है कि कितने टर्म तक आपको ये फिबोनाकी सीरीज जनरेट करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर यूजर ने n की वैल्यू 8 दी है, इफ सपोज यूजर ने n की वैल्यू 8 दी है, मतलब मुझे n लेंथ तक ये सीरीज जनरेट करनी है। इज इट क्लियर? यस नो? ठीक है, तो ये सीक्वेंस ऐसे आपको फॉर्म करना है, जनरेट करना है, राइट? तो उसके लिए आपको सिंपली पाइथन में प्रोग्राम लिखना है। ये सीक्वेंस के लेंथ की वैल्यू आपको यूजर से लेनी है। अगर यूजर ने 10 डाला तो ये और भी आगे 2-3 नंबर्स ले लेगा, राइट? 13 + 8 जो होगा नेक्स्ट नंबर हो जाएगा, उसका जो नेक्स्ट एडिशन होके नेक्स्ट नंबर हो जाएगा। अगर यूजर ने 10 डाला है तो 10 नंबर्स तक ये सीक्वेंस आपको जनरेट करना है। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस लेंथ कंसेप्ट, राइट? सो अभी एक्चुअल इसका लॉजिक क्या होता है? एक्चुअल फिबोनाकी सीरीज प्रिंट करने का लॉजिक क्या होता है, देखो। ठीक है, तो पहले पहले आपको क्या करना पड़ता है, देखो, ये फर्स्ट सीरीज का फर्स्ट नंबर आपको एक वेरिएबल में स्टोर करना है। नेक्स्ट ये सीरीज का नेक्स्ट नंबर आपको दूसरे एक वेरिएबल में स्टोर करना है। एंड ये जो थर्ड वेरिएबल है, थर्ड वेरिएबल मतलब क्या होगा आपका? अगर मैं a इक्वल्स टू 1 कर 0 कर देती हूँ, b इक्वल्स टू 1 कर देती हूँ, व्हाट शुड बी योर c? What should be your C? a plus b यस एग्जैक्टली, ठीक है। तो थर्ड नंबर आपका कैसे जनरेट होने वाला है? उसके प्रीवियस नंबर का a + b एडिशन इज नथिंग बट योर थर्ड नंबर, राइट? तो यही कंसेप्ट आपका सिंपली यहाँ पे है। बट वो सीरीज कैसे जनरेट करना है, सीक्वेंस कैसे जनरेट करना है, देखो। सिंपली a को हम लोगों ने असाइन कर दिया है 0 से, फर्स्ट नंबर से। सेकेंड नंबर को हम लोगों ने b से असाइन कर दिया, और दोनों नंबर की एडिशन इज नथिंग बट योर c। अभी नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होने वाला है? सिंपली आपको असाइनमेंट करना है। सिंपली आपको असाइनमेंट करना है। क्या असाइनमेंट करना है? ये b की वैल्यू जो भी है। अभी नेक्स्ट आपका कंसेप्ट क्या होने वाला है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सेपरेटली। तो अभी ये मेरा असाइनमेंट हो गया। अभी नेक्स्ट स्टेप से आपको करना क्या है, सिंपली मुझे करना है असाइनमेंट करना है। वो क्या करना है, b की वैल्यू सिंपली मुझे a में डालनी है। एंड नेक्स्ट मुझे c की वैल्यू जो है c की वैल्यू जो भी है वो मुझे डालनी पड़ती है b में। दैट्स इट। ये सिंपली असाइनमेंट करोगे तो आपका वो फिबोनाची सीक्वेंस जो है जनरेट हो जाएगा। देखो, अभी ये हम लोगों ने ये कंसेप्ट तो कर दिया है, अभी हमें सिंपली असाइनमेंट करना है। तो अभी नेक्स्ट स्टेप, आप b की वैल्यू a में डालो। b की वैल्यू क्या है, 1 है, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी, 1 लिख दूंगी। c की वैल्यू क्या है, यस, c की वैल्यू क्या है, 1 है, तो वो सिंपली मुझे किस में असाइन करनी है, b में। ये यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स लिखे हैं, वो सिंपली फॉलो करना है। c की क्या वैल्यू है, 1, तो वो किस में आ जाएगी, b में आ जाएगी, राइट? फाइनली मुझे एडिशन c की वैल्यू कैसे जनरेट होने वाली है, नथिंग बट a + b। तो क्या करो, यहाँ पे c की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेल मी। 2. यस, 2 आ जाएगी। अभी मुझे फिर से असाइनमेंट क्या करना है, बोलो। a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1. यस, जो b की वैल्यू है वो आपको असाइन करनी है a में, तो मेरी a की वैल्यू आ जाएगी 1। अभी b में क्या आना चाहिए, c की वैल्यू जो भी है वो मुझे असाइन करनी है b में, तो मुझे c की वैल्यू 2 है तो वो मेरे b में असाइन करनी है, सॉरी 2, राइट? और c इज नथिंग बट योर a + b, c इज नथिंग बट योर a + b। बोलो, फटाफट बोलो, चलो। अभी बोलो फटाफट, चलो। 3 ए में क्या आ जाएगा, 2। बी में क्या आ जाएगा, 3. यस। 3. व्हाट शुड बी योर सी, 5. 5. नाउ टेल मी, बी में 3. ए में क्या आना चाहिए, 3, दैट इज नथिंग बट योर बी की वैल्यू। यहाँ पे आना चाहिए 5। 5. 5 सी की वैल्यू, 8. 8 8. यस। नाउ व्हाट शुड बी दिस ए, 5. 5 यस, 5. 8, 8. 13,
8 13 इसका टोटल इज नथिंग बट योर 13। अभी इसमें क्या आना चाहिए? 8 8 इनका सबका ऑब्जेक्ट क्या 13 है? ऑब्जेक्ट टाइप होगा, तो वी आर नॉट एबल टू वैलिडेट 21 देखो बस इतना ही करके दिखा देती हूँ। और फाइनली आपको प्रिंट करना है ए की वैल्यू। सो ए मतलब ये आपका फिबोनाची सीरीज जनरेट हो रहा है। टेल मी। राइट, सो डेट टाइम को कन्वर्ट करने के लिए व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल Yes. yes or no? You have Yes, to ma'am. print value of a, so you'll definitely get the result as your Fibonacci series। ठीक है, जो भी यूजर ने टर्म बोला है, अगर आप यूजर ने 8 बोला है 8 तक हो जाएगा वो लूप एग्जीक्यूट। अगर यूजर ने 10 बोला है 10 तक ये लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर इस मैंने सिंपली एक एग्जांपल दिया है, कुछ तो 1 2 3 4 5 6 7 तक लिया है। अगर चाहिए तो आप और भी फर्दर लेके चेक कर सकते हो। सिंपली टू एक्सप्लेन यू लॉजिक मैंने ये किया है भाई। तो अभी हम लोग प्रोग्राम करके देखते हैं इसके लिए। इसका ये क्लोज करवा देते हैं। Right, so let me write it back. Write back के लिए चाहिए df in the column का नाम is equal to whatever function we are using. So here I am writing it back. It has been executed successfully. And now जो भी है मैं ये कॉपी करवा देती हूँ एज माई प्रॉब्लम स्टेटमेंट। राइट, फॉर प्रॉब्लम स्टेटमेंट आई एम जस्ट कॉपी पेस्टिंग इट। राइट, ये आपको एग्जाम्पल के लिए ये भी रहने देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ये भी रख देते हैं। ठीक है, चलो। तो ये आपका ऐसे सीक्वेंस जनरेट होते रहता है। तो क्या करना है, n की वैल्यू n टर्म तक निकालना है, n की वैल्यू यूजर से लेना है, ऐसे बोला गया है। राइट, तो करो चलो n इक्वल्स टू इनपुट वैल्यू ऑफ n। ठीक है, n की वैल्यू हम लोग यूजर से ले लें। अब मुझे क्या करना है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे किया है सेम वैसे हमें परफॉर्म करना है गाइस। ठीक है, तो ये a का पहले 0 से असाइन करो, b को 1 से करो। भाई ये सारा कंसेप्ट करना है। और i जो है आपको एक इटरेशन के लिए एक वेरिएबल लगने वाला है। भाई i तो वो हम लोग करके लेते हैं। चलो a इक्वल्स टू 0 कर देती हूँ, b इक्वल्स टू 1 कर देती हूँ। राइट, एंड देन i एक मुझे लगने वाला है जो मैं 1 से नहीं 1 से नहीं, अभी इस केस में ना हमारा सीक्वेंस ही हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है। देखो, तो i को भी मैं यहाँ पे 0 से ही असाइन कर देती हूँ। राइट, अगर यहाँ पे i को 1 से कर दोगे तो 0 स्किप हो जाएगा। राइट, 0 स्किप ना हो इस वजह से मैं i को 0 से ही असाइन कर रही हूँ। ठीक है, उसके बाद सिंपली while i is less than इक्वल टू की जरूरत नहीं है इस केस में। ठीक है, चेक करते हैं। चलो, और अभी हम लोग को सिंपली 0 से ही a की वैल्यू पहले ही प्रिंट करने। देखो ये जो भी है ए जब भी असाइन कर रहे हो तभी मेरा सीक्वेंस चालू हो रहा है। राइट, तो इमीडिएटली प्रिंट का स्टेटमेंट जो है आपका एक कैलकुलेशन जो प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस बी को ए में असाइन करो, सी को बी में असाइन करो, उससे पहले ही ए को प्रिंट करवा दो। राइट, क्योंकि आपका प्रिंटिंग जो है ए का इमीडिएटली फर्स्ट स्टेप से ही स्टार्ट हो रहा है। सो प्रिंट स्टेटमेंट में सबसे एंड में ही यहीं पे करोगे प्रिंट ए। इसके बाद सिंपली मुझे करना क्या है, 1 बाय 1 सारे के सारे परफॉर्म करो। अभी a की वैल्यू मुझे पता है, b की वैल्यू मुझे पता है, निकालना क्या है c की वैल्यू। c की वैल्यू कैसे निकालते हो, टेल मी। a plus b इट इज माय c। अभी ये एडिशन होने के बाद मुझे क्या असाइनमेंट करना है, बोलो। a में क्या डालना है, A comma B is equal to B comma C. तो भी चलेगा, मैं सेपरेटली लिखती हूँ फॉर योर सिंप्लीफिकेशन पर्पज। मैंने सेपरेटली लिखा है। ठीक है, पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, b की वैल्यू मुझे a में डालनी है एंड उसके बाद मुझे c की वैल्यू b में डालनी है। दैट शुड बी योर नेक्स्ट प्रोसेस। और उसके बाद मुझे i इक्वल्स टू i प्लस 1, दैट इज दिस इज नथिंग बट योर सिंपली इंक्रीमेंटेशन ऑफ योर i। तो ये i हम लोगों ने इंक्रीमेंट कब तक होने वाला है, जब तक आपका ये जो भी आपने लेंथ बोला है तब तक वो i की वैल्यू नहीं जाती है, तब तक ये इंक्रीमेंट होते रहेगा। राइट, सो दिस इज योर प्रोग्राम ऑफ फिबोनाची सीरीज। राइट, सो जस्ट चेक करते एक बार रन होता है क्या प्रॉपरली। ओके,
ठीक है, लिख लिया है 0 1 while I is less than equal to नहीं मैम? करना चाहिए। हाँ बोलो। मैम वो प्रिंट स्टेटमेंट वाइल से बाहर आना चाहिए ना, नहीं तो बार बार प्रिंट करता रहेगा वो 0। बार बार क्यों प्रिंट करता रहेगा? ईच एंड एवरी टाइम आई की वैल्यू नेक्स्ट इंक्रीमेंट होके ही वो प्रिंट करेगा ना, और वैसे ही ओके हमें ओके चाहिए। हाँ हाँ। वेट आपने वो नीचे लिखा तो भी चलने वाला है, बट स्टिल आई एम जस्ट चेकिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, वो 7 तक बोला है और वो 8 प्रिंट कर रहा है क्योंकि वो हम लोगों ने ये लेस देन इक्वल्स टू किया है, इस वजह से। हाँ, अगर आपको 7 आपने डाला है तो ओनली 7 टर्म्स ही चाहिए। देखो अभी क्या हो रहा है मेरा, ये इक्वल्स टू के वजह से ना वो 8 बार वो 8 टर्म्स तक 8 लेंथ तक प्रिंट हो रहा है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इफ सपोज आपको 7 ही ओनली, मुझे 7 ही मैंने लेंथ 7 बोला है तो 7 ही नंबर चाहिए, तो ये इक्वल्स टू हटा दो। ठीक है, सेव कर दो एंड फिर से एक बार रन कर दो। देखो अभी 8 तक ही आ जाएगा। दिस इज नथिंग बट माई फिबोनाची सीरीज ऑफ लेंथ 7। 1 2 3 4 5 6 7 7 लेंथ की फिबोनाची सीरीज प्रिंट हो गई। इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. ऐसा कुछ नहीं है, ये प्रिंट जो भी है, ये प्रिंट जो भी है ना, आप नीचे करोगे ना तो क्या एक गलती हो सकती है, बताओ क्या आपको, कि ये जो भी है एक ही वैल्यू चेंज हो रही है ना इन बिटवीन लूप में, तो हो सकता है वो सीक्वेंस आपका गलत हो। ये सब हो, पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ही वैल्यू 0 से असाइन कर दिया है, ये कंडीशन चेक करके इमीडिएटली हम लोग एक ही वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, तो हमारा एक 0 प्रिंट हो गया। राइट, इसके बाद हम लोगों ने 0 + 1 3 कर दिया, वो जो भी है सी में स्टोर कर दिया। उसके बाद ए की वैल्यू क्या थी? यस 0 थी। राइट, सॉरी, बी की वैल्यू क्या है? 1 है, वो सिंपली ए में असाइन कर दी। जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया था वही हम लोगों ने यहाँ पे टाइप किया है। सी की वैल्यू मतलब ही क्या है? दोनों की एडिशन करके हम लोगों ने सिंपली जो भी एडिशन है वो बी में प्रिंट करवा दिया। उसके बाद आई की वैल्यू जो है सिंपली 1 से इंक्रीमेंट कर दिया। यस, फिर से ये ऊपर जाएगा, आई 2 हो जाए, 2 हो गया। अभी 2 इज लेस देन 8 है क्या? यस 8 है। राइट, 2 इज लेस देन 8 है। राइट, तो फिर से अंदर आ जाएगा। अभी क्या है ए की वैल्यू? बोलो, ए में क्या आ गया था? बी आ गया था, मतलब ये ए में अभी क्या आ गया? 1 है, तो 1 वो प्रिंट करेगा। आ गया हमारा सेकेंड सीक्वेंस। यस, तो इस वजह से मैंने वो प्रिंट ए को पहले किया है। अगर एंड में करते हो तो आई की 2-3 प्रोसेस में आई की वैल्यू पूरी तरह से चेंज हो जाती है। गेटिंग माई पॉइंट? यस नो? यस मैम। उसके वजह से फिबोनाची सीरीज में जनरली आप ये प्रिंट का स्टेटमेंट ऊपर ही लिखो। अगर चाहिए तो यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल दो, प्रिंट सीक्वेंस। ठीक है, ऐसे जस्ट आपको अगर हेडिंग चाहिए तो डाल सकते हो, जितना भी आपको चाहिए। अगर मैं 10 तक भी निकालने जाती हूँ तो भी वो आपका सीक्वेंस जनरेट होने वाला है। राइट, n की वैल्यू जितनी डालोगे उतना वो सीक्वेंस आपका जनरेट हो जाएगा। देखो अभी मेरे सीक्वेंस 10 लेंथ तक हो गया है। यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। यस, तो ये 10 सीक्वेंस तक मेरा 10 लेंथ तक मेरा सीक्वेंस जनरेट हो गया। इज इट क्लियर? या किसी को डाउट है? बोलो। Okay, fine. So, based on while loop, I have given you only one single assignment, guys. Only single practice program. Yes, everyone 60 जो D division में सारे लोग हैं, सबको ये परफॉर्म करना है। Only single program I have given you. ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगा वाइज का, सब लोग परफॉर्म करो। Yes, ma'am. ओके, और कल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग फॉर लूप स्टार्ट करेंगे। ठीक है।